till 3. Okay. I think वो winter timing होगी ना, थोड़ा लेट होता होगा. 3 o'clock she says. So in the last class, I think what are the questions we have done already? 13th कर लिया था ना? Yes, yes. Question number 17, all parts. मिला हुआ है तुम्हें ये. Question 17. Sir, is Advika there? What? Is Advika there? Yes. Is she eating cup noodles? No, no, she is not eating. Oh no. She said कि you are not there, so she won't eat. Okay. Question 17. First part of the question 17 is find the equation of the line which passes through 2 comma 2 root 3 and inclined with the x-axis at an angle for 75 degree. So you know which formula to be applied? Yeah. Y is equal to mx plus c. So you can use first part, you've been given theta is 75 degree and the point is also been given to you. The point which lies on the line is 2 comma 2 root 3. So we can use 1 point form. Y minus y1 is equal to m into x minus x. Tan 75 is 2 plus root 3. Hmm? Hmm. And cot 75 or tan 15 is 2 minus root 3. Remember this. क्या हो दिव्या, तुम्हारा कैमरा ऑन नहीं है आज? एक सेकंड अभी अभी घर वापस आई तो Hmm? आई जस्ट केम बैक होम तो आई हैड टू सेट अप एवरी So y minus 2 root 3, it is 2 plus root 3, x minus 2. Can you open the brackets? Hmm. So y is equal to 2x plus root 3x minus 4. So this is the answer. If you want, you can write in the slope intercept form also. Slope is 2 plus root 3 and the y-intercept is minus 4, right? Second part. Aryaman, you have the assignment? Yes, sir. Okay. 17th question, all parts. Conic is easy because of late they have cut a lot of syllabus for the last 2 years. क्या हो दृष्टि, तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी? नहीं सर. ऋषा, तुम क्या कर रही हो?
क्वेश्चन नंबर 17। कितने पार्ट्स हैं इसके? मैंने असाइनमेंट नहीं खोला, मैं आपका ही देख रही फिर हूँ। कर लूँ ये वाला सॉल्व फिर वही खोलूंगी। मैं, मुझे पता था ना तुम अभी कुछ खा रही होंगी या मोबाइल से खेल रही होंगी। सर यार आज तो मैं बीमार हूँ, इनमें से कुछ नहीं कर रही। कोई बात नहीं, जाके ले। क्या खाया तुम लोगों ने? अच्छा, अच्छा होता है वो। आई लाइक द स्टफ वन दोस। नहीं, हमने while doing questions ना, while doing forms of straight line, I did some questions that similar. Which one? Second? Because yeah, it says intersecting the y-axis distance 2 units above the origin. So when it's above the origin, C would be positive. Yeah. So, so you can use intercept form. You've been given this value, which is +2, and slope is how much? Tan 1 1/√. by root. So using y is equal to mx plus c. अगर ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 दिया है, हम्म। क्या? अगर ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 दिया है तो हम्म। वो सी दैट इज डिफरेंट। ओरिजिन से परपेंडिकुलर से अगर 5 दे रखा है, मतलब यू यूज नॉर्मल फॉर्म। हमने नॉर्मल फॉर्म किया था ना। ये 5 p दे रखा है तुम्हें, तो इन दैट केस यू यूज p इज इक्वल टू x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा। यू हैव टू यूज नॉर्मल फॉर्म। You have to use normal form. In the third part of the question, you have to use normal form x cos alpha plus y sin alpha equal to p. Normal form is absolutely normal. X cos alpha plus y sin alpha equals to p. Alpha is the angle made by the normal with positive direction of x-axis. This is alpha. See in the diagram. ये अल्फा दे रखा है, इसका It, आंसर ये होता है। it's given as 30 degrees. अल्फा इज 30। नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन में जस्ट रिप्लेस अल्फा एंड पी। P is 5 units, alpha is 30 degree. Hmm. 30 तो 1 by tan 30 1 by cos 30 is root 3 by 2, 1 by 2. Cos increases, decreases from 0 to 90, sin increases 0 to 90. तुम लोग जो मीटिंग जो डाउनलोड कर लेना, अगली क्लास में उसमें लूंगा, जो में, ठीक है? जो लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, दिव्शा, आर्यमन, डाउनलोड जो मीटिंग। पी की वैल्यू वो जो हम मॉड सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर रहे थे वो हमें ऑलरेडी दे रखा है, वो क्यों करना चाहेंगे हम, जब हमें ऑलरेडी दे रखा है पी की वैल्यू। हम्म। कौन से वाले में? अच्छा।
Hmm. No, median means you have to join the vertex to the midpoint of the opposite side. So that means you need to find midpoint of the opposite side, which is PQ. इसका midpoint निकालो and then join. This is the answer. Yes. And then you can use 2-point form. लास्ट कौन सा हुआ था? पीएनसी बायनोमियल होगा तुम्हारा. हम्म. मेरे पेपर में इंट्रोडक्शन टू 3D लिया व्हाट? इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। हाँ, तो क्या करना है उसका? क्या वो मुश्किल है? तो कुछ भी नहीं करना, बहुत इजी है. जो 2D में है ना डिस्टेंस फॉर्मूला, उसको 3D में कन्वर्ट कर लो. लाइक x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर, ये आ जाएगा. इन 2D में वी हैव टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम लाइक दिस, जो कि 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करता है. x y एंड 3D में z भी आ जाता है. सो ऑक्टेंट बन जाते हैं. सो एनी पॉइंट हैज 3 कोऑर्डिनेट्स x y एंड z. तो जो 2D में किया उसको 3D में कन्वर्ट कर लो. So this is the median. We find the midpoint and then use this form, 2-point form. You can take this point as x1, y1, this point midpoint as x2, y2. What is the midpoint? 2 minus 2, 0. 1 plus 3, 2. 0, 2. To use 2-point form. Whichever point you take as x1, y1 or x2, y2 won't make a difference. The final answer will be the same. This is the 2-point form. So y minus y1 equal to y2 is 2 minus 5 x minus x1. 4y minus 20 is equal to, this is 3x minus 12. So your answer is 3x minus 4y plus 8 equals to 0. Hmm. नहीं, 3/2, 3/4. Slope ना, 3/4.
The same thing. The same thing. Because invariably this is a slope only. So this is 1 point form or 2.4 also. Same. Fifth part. Use 1 point form. Don't. स्लोप इंटरसेप्ट मत करो. स्लोप इंटरसेप्ट क्यों कर रही हो? फिर सी कहाँ से लाओगी? अरे तुम भी ना इतना क्यों करोगी लंबा? ये करो. M is 3/4 and you know this point 4,5. The best was 2 point form. 2 point दे रखे थे हमें. Y will remain Y. X1 Y1 would be this. No 5. ऋषा तुम क्या नहीं कर रही हो? कुछ भी नहीं. सर इसी पार्ट पे हूँ जो आप कर रहे हो. चलो थर्ड good. वाले थर्ड वाले पे हूँ. बस फोर्थ वाला लेकिन समझ आ गया. कर थर्ड रही हूँ. Hmm. In the fifth, you need to find a line which is perpendicular to a given line segment AB and passing through a given point. It is 90 degree. So our line passes through a given point which is minus 3,5 and it's perpendicular to this. 2,5 and minus 3,6. 2,5 and minus 3,6. उससे वो लाइन पास कर रही है. This is a required line. Again, 1 point form. Yes, so the required line would be this. So this is a required line, but we don't know M. So M you can find using slope of AB. Line passing through minus 3,5 and perpendicular to AB. So find slope of AB. हाँ, AB का स्लोप निकालो, उसका रेसिप्रोकल एंड नेगेटिव हो जाएगा लाइन का स्लोप, क्योंकि परपेंडिकुलर है. सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है. कौन से वाले में? सिक्स्थ क्वेश्चन में उन्होंने दिया हुआ है लाइन को 1:n रेशियो में डिवाइड करता है. हाँ, सेक्शन फॉर्मूले से तुम्हारा पॉइंट आ जाएगा. आंसर विल बी इन टर्म्स ऑफ एन ओनली. ठीक है. एट्थ क्वेश्चन है नहीं क्या? कौन सा? हाँ वो मिस वो है नहीं. व्हाट? स्लोप ऑफ ए बी आ रहा है 6 minus 5 minus 3 minus 2. तो slope is 1 by minus 5. Slope of required line would be 5. 5 आएगा. फाइव. इसको इसमें रिप्लेस कर दो. फाइव एक्स minus y plus 20 equals to 0.
Aryaman, which question you are at? 8th. Okay. Kavya? 7th. All right. एट्थ क्वेश्चन बोनस, मतलब बिना किए हो जाता है वो, कुछ है नहीं ना वो। आर्यमन, Yeah. एट्थ क्वेश्चन तो खाली है। और क्या सर? अब नेक्स्ट करो, सिक्स 9th करो। कर रहा हूँ। ओके। सर मैथ्स का जो नेक्स्ट टेस्ट होगा वो कौन से चैप्टर का होगा? बायनॉमियल, योर फेवरेट। तो मेरा फेवरेट तो पीएनसी था। वो तो हो चुका है। हाँ तभी तो अच्छे नंबर आ गए उसमें गलती से। सिमिलर टू दिस, लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है, परपेंडिकुलर भी है। दिस इज रिक्वायर्ड लाइन। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, -20 नहीं होगा। सही बोला तुमने, नहीं होगा। और जिम चल रहे हैं तो फीवर है। गुड, आई लाइक इट। वो मैम बताएंगे कब तुम्हारा नेक्स्ट टेस्ट कौन सा हो रहा है यहाँ पे, तो उसके बाद होगा फिर। सो सेक्शन फॉर्मूला यूज करके क्या आ रहा है, 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, n को इससे मल्टीप्लाई करोगे, x विल बी, पॉइंट निकालने हैं। So x coordinate is 2 plus n over 1 plus n. What is y coordinate? 1 into 3, n into 0 by 1 plus n. So 3 divided by 1 plus n, right? Then you can find slope of this line, AB, and then line perpendicular. Yes. नहीं चल रहा? Slope of AB is 3, slope perpendicular to it would be -1 by 3, right? So the required line would be y minus y1, which is 3 over n plus 1. Slope is -1 by 3, x minus x1. So your answer will be in terms of n only. N plus 1 will cancel in the denominator. 1 पॉइंट निकाल लिया सेक्शन फॉर्मूला से, स्लोप निकाल के परपेंडिकुलर का स्लोप निकाल दिया, जो भी पहले किया था इस वाले में, because 1 is to n. And then you can cross multiply 3 n plus 1 y minus 9 minus x n plus 1 plus 2 plus n.
Bring everything this side. This is the answer. Slope of AB. So slope perpendicular would be this because the line is perpendicular to AB. I have taken AB this. The 2 points, the line segment joining 2 points is AB. इससे क्या हुआ? These are question videos. कौन सा? 11th. बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना वो, तो उसको इंटरसेक्ट फॉर्म से कर लो. लेट द पॉइंट्स बी a, 0, 0 b एंड सेक्शन फॉर्मूले से a और b निकाल के सॉल्व करो. लेट द लाइन बी x by a plus y by b equal to 1. Use intercept form. This would be a0, 0b, h comma k. You, sure. एग्जैक्टली सेम. वहां पे वो मिड पॉइंट था, सॉरी परपेंडिकुलर वहां भी था, यहाँ भी था. वहां पे पॉइंट अलग से दिया दिया हुआ था -c5. यहाँ पे पॉइंट ये वाला दे रखा है कि जहाँ पे ये इस लाइन को इंटरसेक्ट करी वो 1:n में डिवाइड कर रहा है. तो हमने रेशो सेक्शन फॉर्मूले से कोऑर्डिनेट निकाल लिए इस पॉइंट पॉइंट के, स्लोप निकाल लिया, उसका परपेंडिकुलर स्लोप निकाल दिया, फिर 1 पॉइंट फॉर्म यूज कर लिया. कौन सा? 2 and 9. क्वेश्चन 17 के 8th पार्ट में हम्म मैं स्लोप को 1 भी ले सकती हूँ, -1 भी ले सकती हूँ. 8 part है ही नहीं. 9th पार्ट. 7th. 7th में तो वाई डू, जब वो इंटरसेप्ट बोल रहा है इतनी दूर से चिल्ला के, तो इंटरसेप्ट फॉर्म यूज क्यों नहीं कर रही हो तुम? इट सेज दैट इट कट्स इक्वल इंटरसेप्ट्स. So let the equation be x by a plus y by b equal to 1. According to the question, a is equal to b. So it equation would be x by a plus y by a equal to 1. Right? Now this passes through which point? 2, 3. 2, 3.
So since line passes through 2 comma 3, it would satisfy. So 2 by a plus 3 by a is equal to 1. So a equal to 5 आ गया. अब इस a को 5 को वापस डाल दो. अभी मैं स्लोप यूज करके निकालूं तो मेरा 1 भी आ रहा है और -1 भी आ रहा है. अगर आपकी आवाज नहीं आ रही. अब आ रही है. ओके. तो अब it passes through 0 2 point हमें given है. We can use 1 point form. बोलो. उसके बाद कितनी छुट्टी. रिवीजन रिवीजन कर लेंगे. हाँ. डेट लिखी होगी कुछ. ब्रोशर में डेट लिखी होगी कुछ बताया होगा मैम ने. And then it says
second part, also find line, equation line parallel to it and crossing the y-axis at a distance 2 units below the origin. So if it's below the origin, then the point would be, कौन सा point होगा below the origin? अब 0, -2. 0, -2. So now line parallel to it and passing through 0, -2. So you can apply shortcut formula also, or you can do direct this way also. So if you use method, it'll be y plus 2. Slope is same because line is parallel. So it is y is equal to minus root 3x minus 2. In 10th question, you've been given volume of milk and the rate of the milk. So you can like start like this. X को तुम ले लो rate and y you can take as volume of milk. So it says that 1 point has been given to you. एक point given है x1, y1 and that will be 14 rupees per liter and the volume is 980. The second point is x2, y2 which is volume 111,220 and the rate is 16. This is 1220 and we need to find y when x is how much? Rate is 17 rupees per liter. That's the question. So using 2-point form, you can find equation of line and then you can find y by substituting x. है ना? 2-point form use कर लो. ग्राफ क्यों बना रहे हो? सीधा लाइन की इक्वेशन फॉर्म करो ना 2-point फॉर्म से. इक्वेशन ऑफ अ लाइन यूजिंग 2-point फॉर्म. सिर्फ वेरिएबल चूज करने हैं तुम्हें. तो सेकंड पार्ट था इट इज इंटरसेक्टिंग बिलो ऑरिजिन टू. हाँ एंड देन यू फाइंड वाई. Sir, I'm done. What do I do? Done all. Yes, sir. Then question number 29. If you're finished ठीक है. with all questions, question 29, 31, 34. हाँ तो m यही हो गया ना 2-point फॉर्म में. व्हाट इज 2-point फॉर्म? 2-point फॉर्म इज सेम ओनली. दिस इज m. This is m only. Any point you can take x1 y1. जो m होता है वो i2 minus y1 स्लोप ही तो होता है. ये जो तुमने m लिखा है ना ये y2 minus नॉट है. y नॉट है x नॉट है. ठीक है. कैसे भी ये लिखा तो है तुमने x1 y1 x2 y2. फिर सब्स्टिट्यूट करो सीधा.
2 से काट दो 120। नहीं, जरूरत नहीं है, कट रहा है वो। तो इक्वेशन ऑफ लाइन कितना आ रहा था? 120x माइनस 700, ये था। y इज इक्वल टू 120x माइनस 700। अब x को तुम 17 सब्स्टिट्यूट कर दो। y कितना आ रहा है? 1340। x को 17 सब्स्टिट्यूट किया ना एंड में। क्वेश्चन वाज व्हेन द रेट इज 17 व्हाट इज द वॉल्यूम? रेडियस फाइंड करना था, रेट गिवन था। जिन लोगों ने कर लिए सारे वो 29 31 34 करो। हम्म मल्टीप्लाई किया ना 120 टू 17। ये आंसर है। ओके। दिव्या एनर्जी सेव कर रही हो तुम बहुत ज्यादा। क्यों? बोलती नहीं हो ना, इशारों इशारों में। ऋषा लिख लो। लिख रही हूँ सर। अधिविका तुम्हारी तारीफ कर रही है प्रिशा। मैंने ऐसा क्या कर दिया? कि देखो बीमार है फिर भी पढ़ रही हो सीरियसली। सर बहुत बोर हो रही हूँ, सुबह से मैंने सिर्फ रील्स देखी है, मतलब मैं आपको बता रही हूँ, एक पॉइंट पे मेरी रील्स रिपीट होने लग गई थी। मेरे को मेरे खुद के लाइक्स दिख रहे थे, ओ वाह ये तो मैंने कर रखा है लाइक। चलो अच्छी बात है, पढ़ लो फिर अब। कोऑर्डिनेट एक्सेस के बीच में। कोऑर्डिनेट एक्सेस का मतलब हुआ ये बीच में, ठीक है। So this point is a0, this point is 0b, then the equation of line would be x by a plus y by b is equal to 1. Let the line be this. And the point says here, which is dividing the line segment, uh, intercept between the axis, and what ratio? The intercept form कहलाती है. This is a and this is b. Then this is called intercept form. हाँ, because 2 point form कर लेते ना, use a0 0b. अब क्या रेशियो क्या दे रखा है? दैट्स इट नहीं? 1:2। हाँ, तो मतलब x के साथ 1 होगा, y के साथ 2 होगा। इस रेशियो को यूज करके a और b निकाल लो h के टर्म में।
use section formula. When you use section formula, this you multiply this side and 2 multiply this side. Find HK in terms of A and B, and then find A and B in terms of HK. Hmm. चाय कौन सी? दूध वाली? नहीं, दूसरी बना लो। तो अब क्या आ रहा है इंटरसेप्ट फॉर्म से? एच कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट है, सो 2 into A प्लस 1 into 0 डिवाइड बाय 1 + 2. So from here I can find A. A is 3h/2. Then the y coordinate is k, which is 1 into B. दिया हुआ है क्वेश्चन में। अरे बावली 3h मल्टीप्लाई किया ना, तो थ्री इज इक्वल टू 3 थ्री। इधर जाएगा, 2 इधर आएगा, तो मूर्ख हो क्या? बी इज इक्वल जंक फूड खा के ना तुम्हारा दिमाग हो गया जंक। बी इज इक्वल टू 3 के आ रहा है। 3 क्या आ रहा है? मेरा भी 3 के ही आ रहा है, तुम मिसप्रिंट रहे हो थोड़ा सा। अब ए और बी को रिप्लेस कर दो। रिप्लेसिंग ए एंड बी इन द इक्वेशन नंबर 1। काव्य क्या हो गया, तुम इतने शांत क्यों आज? पर मेरे को 29% समझ नहीं आता। क्या समझ नहीं आ रहा? 29। अभी करते हैं। x/a, x/a is 3h/2, y/b, b is 3k. So the answer is 2x/h, y/k equals to 3. ये आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। तो 12 भी है। By using the concept of equation of line, prove that the 3 points are collinear. तुम क्या करोगे? 2 पॉइंट में डालती हूँ। 2 पॉइंट से इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लो, थर्ड पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। इसको हम एरिया इक्वल टू 0 करके भी कर सकते हैं, बिकॉज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, द ट्रायंगल फॉर्म्ड वुड हैव 0 एरिया। वो तो बहुत इजी होगा, बट इसने बोला है कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन, तो 2 पॉइंट फॉर्म यूज करो, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन एंड द थर्ड पॉइंट वुड सेटिस्फाई। 12th क्वेश्चन। So first you can take 3 0 and एरिया 0 करके भी आ जाएगा, लेकिन उसने बोला ना कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन, तो ये टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। नहीं, वो भी नहीं करना, पहले इक्वेशन ऑफ लाइन निकालो, थर्ड पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। So take this as x1 y1, x2 y2, y minus y1. So this is the line. Now what is the third point which lies on it? It is 8 comma 2. So will 8 comma 2 satisfy this? So 2 comma 2 is equal to, yes, that means the points are collinear. एरिया 0 के तो करके तो बहुत इजी था हमारे लिए, बट उसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे स्कूल में। द क्वेश्चन सेज यूजिंग एरिया 0 करके तो बहुत इजी था हमारे लिए, because when the points are collinear, area will be 0. Hmm. Shoestring method.
Collinear points will form a triangle whose area is 0. बता रहा हूँ वैसे, एंट्रेंस में आएगा तो ऐसे कर लोगे ना. 0 आ रहा है ये. You take any 2 point, find the line, and third उसको satisfy करेगा. Any 2 point you can take to find the equation. आर्यमन 29 हो गया. Yes, sir. 31 करो. कर रहा हूँ sir. दिया हुआ है ना 2 point. Y is 2, X is 8. लाइन में इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया ना थर्ड पॉइंट को. थर्ड पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है. थर्ड पॉइंट का Y 2, X 3. You know that if the line is like this, its distance from origin is always how much? It is mod of C divided by root of A square plus B square. So perpendicular distance of a line is always like this. Question 29 is based on this. तो 31 के बाद क्या करना था? 29, 31, 34, Okay. and then 43 and 35. So the first line is what? X cos theta plus y sin theta minus k cos 2 theta equals to 0. This is the first line. And its distance, perpendicular distance from origin is P. So P कितना हो जाएगा? P is equal to mod minus k cos 2 theta by under root of cos square plus sin square. So I get P is equal to k cos 2 theta. Equation number 1. Is it okay? काव्या देख लो अब. हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज कर लिया. डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम ऑरिजिन का फॉर्मूला यूज किया. अब सेकंड लाइन का डिस्टेंस भी दे रखा है उसने. सेकंड लाइन हमें दे रखी है x. सेकंड लाइन इज x sec थीटा प्लस y cosec थीटा इक्वल्स टू k. अब sec cosec को हम क्या करेंगे? साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे. एलसीएम ले लो. ये आ जाएगा. पहली वाली इक्वेशन में cos 2 थीटा आ रहा था, तो हम एक काम करते हैं, इसको sin 2 थीटा में कन्वर्ट कर लेते हैं. यू ऑल नो दैट 2 sin थीटा cos थीटा कितना होता है? 9 2 थीटा। वो उन्होंने sin 2 जो थीटा. 4Q दिया है उसको पुट करके कन्वर्ट हो रहा है। हाँ, बाद में कर सकते हो, मैंने अभी कर दिया. तो k sin 2 थीटा बाई 2 आ गया.
अब इसका डिस्टेंस निकालो ओरिजिन से। इसका डिस्टेंस वैसे वही तरीका, Q इज इक्वल टू मॉड C। So Q is coming out to be K sine 2 theta by 2, और 2Q is equal to K sine 2 theta। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को स्क्वायर करके ऐड कर दो, यू गेट योर आंसर। और एल्स LHS में यू कैन सब्स्टिट्यूट P and Q, तब भी आंसर आ जाएगा। स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 and 2। या तो जिसमें प्रूव करना था वो कर लो, या फिर स्क्वायरिंग। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 होता है। नेक्स्ट इज 31। थर्टी वन देखो, पढ़ो क्वेश्चन क्या है। सिमिलर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगेगा। यूज इंटरसेप्ट फॉर्म एंड यूज परपेंडिकुलर डी वाला। ओनली थिंग इज distance of a line from origin is always P, and which is this divided by this square plus this square the root। constant term divide by distance निकालना, distance का फॉर्मूला है ये। this divide by this square plus this square the root, ये फॉर्मूला होता है। इमेज ऑफ अ पॉइंट का क्या एनी लाइन। हाँ बोलो। इमेज ऑफ अ पॉइंट का क्या मतलब होता है? किसका? इमेज ऑफ अ पॉइंट का क्या मतलब होता है? 34th क्वेश्चन। तुम कौन सा पूछ रही? 34। हाँ, मिरर मिरर 10th क्लास में वाले तो अच्छे मार्क्स थे साइंस में। प्लेन मिरर कितना डिस्टेंस इमेज बनाता है? इक्वल डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस बिहाइंड। बहुत सारे थे उसके, फिर भी खुश नहीं रहती है। कितने थे बताना दिव्या? 98%। 98? नहीं, साइंस में कितने थे? 100। 100 थे। फिर भी बोल रही है मेरे 101 क्यों नहीं आए, ऐसे बोलती है ये। तो मिरर का मतलब है सेम डिस्टेंस बिहाइंड एट द ऑब्जेक्ट, ठीक है।
100%। पांच कम कर लो। So 31 is P is the length of perpendicular from origin to the line whose intercepts. So the required line is basically x by a plus y by b is equal to 1. This is the line given to us. इसका डिस्टेंस origin से हमें दे रखा है, कितना दे रखा है? P. The distance of this line from origin is P. We can use that formula. Formula क्या था? P is equal to mod C. What is C? C is 1 minus 1 divided by root of A. What is A? Coefficient of X. Coefficient of X is 1 by A squared. B is coefficient of Y, which is 1 by B whole square. I have used the formula of the distance of the normal, length of the normal from origin. A की जगह 1 by A आ रहा है, B की जगह 1 by B आ रहा है। ये राशि -1। अरे देखो ना तुम, तो सी कितना है? कंपेयर करो, सी कितना है? -1 है। तो ये फॉर्मूला तो मालूम है हमें। इसका डिस्टेंस कितना होता है? इसका डिस्टेंस कितना होता है? ये होता है। तो इफ यू कंपेयर दिस लाइन विद दिस लाइन, तो व्हाट इज कैपिटल ए? 1 by a. व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स हियर? ये तो दे रखी है इंटरसेप्ट फॉर्म। और क्या करोगे? फिर कौन सी लगाओगे? दे रखा है इंटरसेप्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन में जब इंटरसेप्ट दे रखा है, and what is coefficient of y and b is equal to 1 by b, and now squaring both the sides. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। आ गया आंसर। डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। अगर सुभाष सर से पूछोगे तुम ड्राइंग सर से, तो बताएंगे ड्राइंग इजी है, मैथ्स टफ है। इफ यू आस्क मी, तो आई विल से कि ड्राइंग टफ है, मैथ्स इजी है। If you ask Kavish, everything is easy. So what did you say? सब कुछ इजी है ना, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। Sir, very easy. काव्य को हम्म, अच्छा है। दिव्या को सब टफ लगता है, क्योंकि सब में 100 क्यों नहीं आते, इसकी प्रॉब्लम ये है। हाँ, अच्छी बात है दिव्या, तुमने अपना बार बहुत हाई सेट किया हुआ है। टारगेट पढ़ती रहती हो, तुम लोग पढ़े रहते हो। चलो क्वेश्चन करो, टाइम वेस्ट नहीं। 34 कर लो अब। आपने उसके Next, आपने उसके बाद कौन सा क्वेश्चन लिखा था? 34 के बाद 35। 34. 34 Sir, 35। next chapter कब शुरू करेंगे? नेक्स्ट क्लास में क्या? Next chapter कब शुरू करेंगे? अगली क्लास में। कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे? अगला होना चाहिए कोनिक। कोनिक कर लो या प्रोबेबिलिटी, जो भी तुम्हारा मन है। कोनिक।
तो probability और कर 3D करा दो, यूटी में आ रहा है। अरे 3D तो करने लायक ही नहीं है, इतना इजी है चैप्टर वो। तो क्या छोड़ दूं? और क्या खुद। हमारे स्कूल में हमें 3D तो इतना इजी है, तुम्हारा गली का धोबी भी कर लेगा उसके क्वेश्चंस। अच्छा, ओके। 3D करने से पहले हो जाता है, शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा आधा। जल्दी करो, 34 करो अब। जो तुम लोग डिसाइड करो कर लेंगे। क्या 35 में उन्होंने थर्ड इक्वेशन x इक्वल टू 0 दिया है? हाँ, दैट इज वाई एक्सिस। एक्स का टू जीरो का मतलब है वाई एक्सिस। हम्म। ओहो। So this line is x minus 3y plus 4 equal to 0. It behaves like a mirror. That is, if you take a point over here, 1 comma 2, उसका हमें image निकालना है. तो you know that image is always same distance behind. So A का image मान लो B dash B है. So this distance would be equal to distance. M would be midpoint. At the same time, be normal also. 1 comma 2 given है ना. तो मैं वो तो फाइंड करना है. इमेज फाइंड करना है हमें. Suppose 1 comma 2 is a point, object point, and we need to find its image. So one thing is M is the midpoint. M is तो midpoint हो गया. We can find slope of this line. कितना आ रहा है इसका slope? Coefficient of x by coefficient of y. 1 by 3. If you have a line in general form, then the slope is always minus sign coefficient of x by coefficient of y. Remember this. तो slope आ गया. So that means slope of AB कितना आएगा? AB इसके perpendicular है. -3। Will be -3. अब हम AB की इक्वेशन निकाल लेते हैं. Equation of AB using 1 point form. Y minus y1 equal to slope x minus x1. So equation of AB आ गया 3x plus y minus 1 equal to 0. So this is equation number 1. This is equation number 2. यहाँ तक एक बार लिख लो, फिर आगे करते हैं. And these two lines are intersecting at M. तो इन दोनों को सॉल्व करोगे साइमल्टेनियसली तो तुम्हें M के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे और फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लेना. Solve equation 1 and 2. You'll get point of intersection of these two lines, that is M. And then use midpoint. I'll be using cross multiplication for solving. X minus y 1. Hide this into this.
this into this. 1 into -1, minus sign, 4 into 3, 12. Constant term 3, 1 into 1 minus 3 into 3. Then cross multiply. X is -1 by 10. Y is 13 by 10. किसने किया सॉल्व ये? मैंने किया था, मेरा x आ गया, y -1/10 ही है। ठीक है, तो इसका मतलब मैंने सही किया है। सही है। y देखो कितना आ रहा है। आई यूज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तुम्हें ये मेथड पसंद नहीं है ना, बट बहुत अच्छा मेथड होता है ये। इससे दोनों आंसर इकट्ठे आते हैं, एक्स एंड वाई के। और फिर उसके बाद मिड पॉइंट यूज कर लो। मिड पॉइंट क्या होगा? 1 प्लस x1/2 इज इक्वल टू -1/10 एंड 2 प्लस y1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 13/10। और फिर इमेज आ जाएगा उसका। क्या हुआ? लास्ट में क्या यूज किया? एक्स वाई, यानी अभी तो एम के कोऑर्डिनेट्स आए हैं ना, फिर मिड पॉइंट यूज करोगे। हाँ, क्या बोल रही तुम, बोलो। नहीं, ऐसा नहीं होता। एक स्पेसिफिक टाइम पे देते हैं। क्यों, तुम्हें यू ऑलवेज इंटरेस्टेड नॉट राइटिंग द टेस्ट? I mean, you interested not writing the test, in not writing the test? फिर तुमने लास्ट टेस्ट दिया था पीएनसी का? आगे कोऑर्डिनेट्स आ गए दृष्टि? कौन सा क्वेश्चन है? 34। 6/5 है, जो मैंने y निकाला नहीं था क्योंकि हम्म, मैं अगले क्वेश्चन पे आ गई थी। ठीक है। मेरा तो -6/5 आ रहा है। क्या 6/x1? मेरा -6/5 आ रहा है। हाँ, तो -6/5 ही तो आएगा। 6/5 आएगा। नहीं, तो x तो नेगेटिव है, तो वो भी तो। उन्होंने पीछे भी पॉजिटिव दिया है, उनका भी पॉजिटिव आ रहा कैसे? हमारा -1/10 आ रहा है, तो फिर वो नहीं, -1/10 आ रहा है तो नेगेटिव ही तो आएगा। इट वुड बी 1 प्लस x1 इज इक्वल टू -1/5। तो x1 वुड बी -1 - 1/5, -6/5 आएगा। है। उन्होंने पीछे पॉजिटिव दिया हुआ। पॉजिटिव नहीं आ सकता। मेरा भी सर +6/5 आ रहा है। अच्छा, तो फिर हमारा ये एक्स को -1/10 गलत है क्या, मतलब? या तो ये गलत होगा फिर। क्योंकि हमारा y कोऑर्डिनेट भी अलग आ रहा है। वाई कितना आ रहा है? 13/10 नहीं आ रहा है? 13/10 आ रहा है, उनका 7/5 आ रहा है। मेरा भी 7/5 आ रहा है सर। मेरा मैंने 13/10 आ रहा है। मैंने क्वेश्चन में कहीं गलती कर दी क्या? हाँ, मुझे पता लग गया गलती। इक्वेशन में हमने गलती कर दी यहाँ पे। लुक एट दिस, दिस इज +3। जब +3 इधर आएगा तो -5 होगा ये। दिस इज ब्लंडर, यहाँ गलती हुई है। ठीक है, ये 5 है। इक्वेशन में हमारी कॉन्स्टेंट टर्म गलत हो गई, इसलिए वजह से हो रहा है वो। XW या तो ये सारे इजी हैं। तुम परेशान रहती हो बेकार में। हम्म, परेशान करती हो। 14y = 17। तो फिर ये 11/, तुम्हारा M क्या आ रहा था, मिड पॉइंट क्या आ रहा था? 11/10 आ रहा होगा ना? मेरा मिड पॉइंट तो नहीं, इन लोगों को 11/10 आ रहा होगा। 11/10 आएगा ना फिर। और Y आएगा 17/10। ठीक है, अब आ जाएगा आंसर। मेरा 17/13 आ रहा है। नहीं, 17/10, 13 कैसे आ रहा है?
17/10 आ रहा है, ठीक है, चेक करो। वो 5 की गलती हो गई ना, साइन चेंज हो रहा था, वो एक स्टेप नहीं लिखा तो वही गलती हो गई। एक्स आएगा हमारा 11/10, वाई आएगा 17/10। सो एक्स इज प्लस 11/10 जब करोगे तो दिस वुड बी 1 + x1 इज इक्वल टू 11/5. So x1 would be 11/5 minus 1, that is x1 would be 6/5 positive. Then this 2 plus y1/2 will be 13/10. So y1 would be 13/5 कहाँ? y1 would be 3/5. 7/5 हाँ, पीछे 7/5 दी। अच्छा, 17 था, अरे यार 17 था ना ये तो। हाँ 7/5 है, ठीक है, दिस 17। ये गलत हो गया था ना, इसकी वजह से प्रॉब्लम हुई थी। 35 के बारे में कौन सा बताया था? 43। 43। तो 35 नहीं हो रहा। 35 नहीं हो रहा? एरिया ऑफ द ट्रायंगल वाला ना, ओके। एक्स इक्वल टू 0 का मतलब होता है लाइन पैरेलल टू लाइन, वाई एक्सिस होता है बेसिकली। सो दिस इज द लाइन विच इज वाई इज एक्स इज इक्वल टू 0। अब दो जो लाइंस हैं, एक है y इज इक्वल टू m1x प्लस c1 एंड y इज m2x प्लस c2। तो एक लाइन को मैं ऐसे ले लेता हूँ, एक लाइन को ऐसे ले लेता हूँ। y इज इक्वल टू m1 m2x plus c2, and this is y is equal to m1x plus c1। ये इजी हो, ये देखो, I've taken the line like this, ठीक है। इस लाइन का y इंटरसेप्ट कितना है? c2। इस लाइन का y इंटरसेप्ट कितना है? c1। Can you find the x coordinate of this point of intersection? The x coordinate will become the height of the triangle, and the base of the triangle would be c2 minus c1. So you can use area equal to half into base into height. अदरवाइज तुम सॉल्व करके भी निकाल सकते थे, मतलब बिना डायग्राम से भी कर सकते हो, लाइक यू सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 0 इन द टू लाइंस, यू गेट द कोऑर्डिनेट्स। दिया हुआ है क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ा करो तुम, बिना पढ़े तुम बोलती रहती हो, तो पढ़ो ना, उसको देखने से काम नहीं चलेगा। अगर मेरी लाइन ओरिजिन के नीचे जा रही है, हाँ, अगर मेरी लाइन ओरिजिन के नीचे जा रही नीचे है, ले लो, लेकिन कोऑर्डिनेट 0 का c1 ही आएगा ना। तो फिर तो c1 + c2 हो नहीं जाए। नहीं, कोऑर्डिनेट c1 0 c1 आएगा ना, तो माइनस ही होगा ना अल्टीमेटली। ओ, तो तुम कोऑर्डिनेट निकाल के भी कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी कर लो। आई नीड ओनली एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दीज टू लाइंस, तो दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं? वी कैन इक्वेट देयर वाई, दोनों के मैंने वाई इक्वेट कर दिए। तो c2 माइनस c1 इज इक्वल टू एक्स कॉमन, m1 माइनस m2 आ गया। आई एम यूजिंग हाफ इंटू बेस इंटू हाइट।
So area will be mod half, बेस कितना है इसका, C2 minus C1, हाइट कितना है, हाइट इज बेसिकली द एक्स कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो हाइट हो जाएगा ट्रायंगल का। एंड ये तुम्हारा आंसर आ गया। और अगर ऐसे नहीं करना था, बिना डायग्राम के करना था, तो तीनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो और शूज पहन लो, 0C1, 0C2, इसका तुम्हें फिर वाई कोऑर्डिनेट भी चाहिए होगा, और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से एरिया निकाल लो। इवन दैट विल गिव यू द सेम आंसर, ये वापस रिपीट हो जाएगा। तीनों वर्टिसेस निकाल के स्ट्रिंग वाले मेथड से एरिया निकल आएगा। दो पॉइंट है, 0C1, 0C2, हमने एक्स कोऑर्डिनेट ऑलरेडी निकाला, वाई निकालना पड़ेगा सब्स्टिट्यूट करके। या फिर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यूज कर लो। वाई कोऑर्डिनेट निकाला किसी ने? इस एक्स को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो या तो। The y coordinate is m1 c2 m2 c1 over m1 minus m2, विद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से एरिया आ जाएगा। लेट, 5 मिनट्स लेट। क्यों लेट भी बोल दिया करो कभी, अर्ली तो हमेशा बोलती हो तुम। y कोऑर्डिनेट मैंने सही निकाला है क्या? y is m1x, x is c2 minus c1 over m1 plus c1, m1 c1 कट जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सेम आंसर आ रहा है, 0C1, 0C2, हाँ सेम आएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सेम आएगा, बिकॉज ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, दिस इनटू दिस एंड देन माइनस दिस इनटू दिस, तो वो टर्म कॉमन आ जाएगी, C1 माइनस C2 वापस आ जाएगा, सेम आंसर आएगा। फिफ्टी फोर भी कर लेना तुम लोग। 54 में थोड़ा करेक्शन है, इट इज x बाई ए कॉस थीटा प्लस y बाई बी साइन थीटा, x बाई ए कॉस थीटा, y बाई बी है वो, नहीं
y बाय बी है, 4/5 की जगह y बाय बी आएगा। बट इसमें तुम्हें एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट का। इफ यू हैव अ लाइन and you want to find out its distance from a point x1 y1, the formula is this, that याद नहीं करना, मेथड समझना है। उस पॉइंट को लाइन की क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर दो। सब्स्टिट्यूट द पॉइंट इन द लाइन। इस पॉइंट को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर द रूट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन। Substitute the point in the equation of line divided by root of a square plus b square. जैसे अगर सपोज ओरिजिन से तुम्हें डिस्टेंस निकालनी है तो x और y को 0 डाल दोगे तो c डिवाइड बाय वो आ जाएगा, जो हमने किया हुआ है ऑलरेडी। तो जिस पॉइंट से डिस्टेंस निकालनी है, एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज कोई लाइन है 3x प्लस 4y प्लस 10 इक्वल टू 0, इसकी डिस्टेंस निकालना है मुझे 1,2 से। 1,2 को लाइन में डाल दो, x की जगह 1, y की जगह 2, rest as it is, divide by a square which is 3, divide by b square which is 4 square. The distance will be 8 plus 10 plus 3, 21/5. Just substitute the point in the line, divide by a square plus b square. Right? So next class we'll start a new chapter then. 43 और 50 वो कर लेना खुद से। Thank you, sir. Okay. Thank you, sir.